There are a lot of trainers, but then there is Praveen Nair. Praveen से मिलो सब कुछ अजीब हो जाएगा. Super workout going on with my bro Praveen Nair. Ever since Praveen and Mehak came into my life, my whole life changed. I mean, the world knows. I don't need to say anything. The mantra is Mehak and Praveen's training. Alright, Mustafa, warm welcome to Sweat and Success podcast. And Mustafa is a very dear friend of mine at the same time. So how did I meet Mustafa is about, I was down with sciatica pain. One of the fine day, I woke up in the morning, I couldn't even walk around. And that's the time I ended up going to Mustafa. I spoke to him on the phone and I went and met him. And the beautiful thing about him is that he teaches you, he educates you, he makes you understand why that happened and how to really prevent that. And that's the beauty about it. Not only me, at the same time, we take Kian every now and then to him, not because Kian is a problem, but most importantly, just to analyze, just to assess what are the conditions that he has, and to make it a point that he keep himself really free and pain-free when he's training too intense. Mustafa, welcome to the show. Thank you. We want to hear from you. Tell us more about you. आपने physiotherapy कैसे शुरू किया? So, myself Dr. Mustafa Kheriwala, Master in Orthopedic in Sports. I started in 2013 physiotherapy from Belgaum. So I went there not for the physiotherapist. I went there for the Air Force. I went there for the Air Force. Air Force में नहीं मिला because I have a surgery in my armpit. Okay. Yeah. Okay. So I have a ulnar injury when I was in 7th standard. So the rod goes from year to year. Okay. हाँ ये पूरा हाथ को सर्जरी है, अल्नर नर्व का सर्जरी हुआ है. So it makes it like 2 years लगा just to hands to Get the move. movement. Yeah, get the movements. Now as you know कि आप एयरफोर्स जब जाते हो तो सर्जरीज नहीं होना चाहिए. eyesight I've heard about it. Yeah. So नहीं मिला. That's why I choose physiotherapy because anyway I'm into fitness that time. I go to the gym, I go to the walks, everything is there. So my elder brother, he told me कि आप join वो physiotherapy कर एक बार जाके देखो क्या होता है करके. There is a huge in my campus there is a huge grounds there. First I went there. एक बड़ा सा चक्कर फुल चक्कर लगा के आया. मैं भाई को बोला कि भाई एक बार एक एडमिशन के यहाँ पे जाते समझना कि प्रिंसिपल मुझे क्या बोलेंगे कि मैं जाऊँ उधर. Correct. सो प्रिंसिपल ने मुझे मिला. ही इज लाइक के यू नो व्हाट इज फिजियोथेरेपी. नहीं आई डोंट नो. मतलब एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज फिजियोथेरेपी. That of course. हाँ आई जस्ट नो के फिटनेस इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ तो है. Correct. तो ही इज लाइक के फिजियोथेरेपिस्ट मीन इफ यू डायग्नोज द इंजरी, simultaneously you treat the injury, simultaneously you make sure and tell the patient or client इतना confidence दिला दो कि वो आगे कभी वो same injury ना create कर सके and enhance the performance at the same time. If he is a sports player, if he's not, he is into corporate, कि वो corporate में है तो उनको इतना confidence level हो जाना चाहिए कि वो बैठे बैठे उनको pain तो feel ना हो. Correct. तो there is one trend called as posture. ठीक है. तो उन्होंने मुझे बोला कि you know the posture क्या होता है करके. वो सब उन्होंने मुझे समझाया था उसी टाइम पे. फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज जब मैं एडमिशन लेने गया तो उन्होंने मुझे समझाया था कि व्हाट इज पोस्चर. वो पोस्चर सब कुछ हमारा फिजियोथेरेपी के अंदर आता है. Okay. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा जर्नी के स्टार्ट कैसे करना है फिजियोथेरेपी का. Correct. And today is one of the successful physiotherapists, and he has a clinic in Andheri West. What's exactly the name? Can you tell us the name and the location? Clinic name is Movement the Physiotherapy Clinic. Movement means movement. 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 MOVMED. Movement is medicine. So it's located near City Mall. Correct. Andheri West. And then the good thing is about, I've been to him a lot of times, and he never asks me to sit back home or take rest kind of stuff. And he always tells you a way around. And then I think you're a firm believer of that. Yep. That if in case you're injured also, you should be knowing that. And how to fix that up. Still don't compromise your workout, don't compromise your daily activities. And that's exactly the beauty that I have found in him. And I'm a big fan of him. Genuinely, I'm a big fan of him. Thank you. And Mustafa, we want to know about it. So today we are here to discuss about, or probably to educate people about, what are the few things that you need to keep in mind. There are a lot of people who goes to corporate lifestyle, sitting down at the desk and doing a lot of things. I even get to see a lot of actors who comes to train with us. They have actually a very slouchy posture. They end up doing this because of, I think today's date, if you look at anyone, they are on the mobile for a long period of time. They end up doing this for a long time. And I actually tell my clients also that don't sit like this.
Yep. try to sit upright. But they do it for a couple of minutes or seconds. They end up going to the same posture unknowingly. So we're going to talk about those things. At the same time, what are the few things to keep in mind? Let me tell you a beautiful story about what to keep in mind. And I used to be lifting a lot of weight, so I was heavily into weightlifting, then into CrossFit, and finally into Pilates now. But of course, before I got into Pilates, the CrossFit phase was a lot of lifting. I'm like, you lift about almost 200 kg in deadlifts and such kind of stuff. Yes. So one thing that we all neglect, especially men neglect, is the mobility part of it. And that has to do a lot with your joint health, your tendon health, and all this kind of stuffs. So we're going to really pick it up with Mustafa about what to keep in mind and how to really enhance your life from the point of view of feeling good at the same time, having a great mindset towards, at the same time, mental health towards the life. Yep. All right, let's begin. Yes. Good. So we have a couple of questions here. All right, Mustafa, we start with the first question. The question is that when we run the gyms or sweat boot camp or sweat Pilates, and when we come across people, of course, on a little heavier side people, they come and complain, or probably they say that, you know what, I do have a knee pain, and it's a very common thing, a knee pain, okay? And when it comes to knee pain, and we do ask them, have you been to any person and any consultant, have they told you to do any kind of MRI, anything? The concern that they have, or probably the query comes from the point of view is that they can't find anything in the MRI or probably in the X-ray, but the pain is still there. What could be the reason? How do we fix it? So there are many assessments, the movement assessment. You can check with a special test also. You can, with your expertise, you can check कि हाँ knee में problem क्या है. History taking is a that's what I'm sorry to interrupt, but that's what he does. Whenever you go to him, he actually spend about good 30 minutes to plus to really understand, to really diagnose why that pain comes. So as I say कि history taking is the most important thing you can say. कि मतलब आप पेशेंट से पहले सुनो कि हुआ क्या, लिसन टू योर पेशेंट. अगर एग्जांपल इफ द पेशेंट्स कम, ठीक है, अगर आपने बोला कि देयर इज अ नी टेस्ट, एसीएल का टेस्ट किया, पीसीएल का टेस्ट किया, यू हैव अ एसीएल पेन, ऐसा नहीं होता. मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हुआ क्या, तो मैकेनिज्म इंजरी क्या होता क्या. एग्जांपल, पेशेंट शी इज 40 years old, बाय स्टेयर क्लाइंबिंग शी हैज अ पेन राइट नी. ठीक है, राइट नी पहले ऊपर जाता है, तो राइट नी पे उनको पेन है, तो मीन्स यूनिलैटरल सिंगल लेग असेंडिंग में उनको पेन आ रहा है. करेक्ट. तो एंटीरियर पार्ट ऑफ योर नी, दिस पार्ट ऑफ योर नी, इट मीन्स इज अ quadricep is weak. So we have to train a quadricep. We have to assess the movement also, like squats. We have to assess the isometric test of the quadricep also. लेकिन ये एक possibility factor हो सकता है कि quadricep is weak. Now same lady going down, नीचे आने के टाइम पे सेम पैर में पेन हो रहा है यूनिलैटरली. यू कैन से कि हैमस्ट्रिंग इज अ वीक लोड. हाँ, लोडिंग राइट. सो ये रिहैब में ऐसा कर सकते हो आप कि यू नो यूनिलैटरल क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथ लोडिंग एक्सरसाइज. तो इफ क्लोज चेन ओपन चेन से स्टार्ट करो पहले आप. वो हाउ डू यू एक्सप्लेन क्लोज चेन ओपन चेन? यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि शायद ये टर्म्स इतना डिटेल में समझ नहीं आएगा. ओपन चेन काइनेमेटिक एक्सरसाइज इज डिफरेंट एंड क्लोज चेन काइनेमेटिक इज डिफरेंट. ओपन चेन इज लाइक व्हेन यू यूज योर बोथ द सेगमेंट ऑफ योर जॉइंट, लाइक इफ यू आर taking the knee, so your ankle support to the ground is a closed chain exercise, like squats, deadlift. Those are a kind of a closed chain exercise. If you same thing with the machines, quadricep extension is the open chain kind of exercise. More of an isolation based movement patterns. Okay. So more isolated pattern is a open chain exercise, I feel. Makes sense. And more, you know, compound movement exercise is the closed chain exercise. Closed chain exercise. Got it. So second thing, as you say कि MRI में कुछ दिखता नहीं है. If you have a injury past 10 years before, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, उसमें नी इंजरी हुआ है, ठीक है, मेनिस्कल इंजरी, एसीएल इंजरी, एनीथिंग, एनी इंजरीज इन योर नी, ओके. एमआरआई में तभी भी दिखेगा दिस इंजरी आफ्टर 10 years के बाद. ओके, करेक्ट. ठीक है, एमआरआई में दिखेगा. नाउ इफ यू गो टू डॉक्टर ने बोला कि कोई हिस्ट्री टेकिंग वगैरह नहीं लिया, डायरेक्टली उन्होंने एमआरआई लिख के दे दी. एमआरआई में मालूम पड़ा कि देयर इज एसीएल टेयर. हम रिहैब कर रहे हैं एसीएल टेयर के लिए, राइट, बट वो तो एसीएल टेयर 10 साल पहले हो चुका था. करेक्ट. ठीक है, एमआरआई डजंट से कि देयर इज अ न्यू इंजरी, देयर इज अ ओल्ड इंजरी, देयर इज अ लाइक रिसेंट इंजरी, ये ओल्ड है, ऐसा नहीं. एक लाइन होता है एमआरआई के नीचे, सबसे नीचे, कोरिलेशन विद योर सिम्टम्स. करेक्ट. वो कोई नहीं पढ़ता है. कोरिलेट करना इज इम्पोर्टेंट, राइट. एमआरआई निकाला, सेम इफ यू हैव एसीएल इंजरी, लिखा हुआ है एमआरआई में 2nd grade और 3rd grade एसीएल इंजरी, यू टेस्ट अगेन द सेम थिंग, पेन आ रहा है, नहीं आ रहा है, देन गो अहेड.
अगर पेन नहीं आ रहा है देन स्टॉप, कि वो ACL की वजह से नहीं है, कोई और Some other problem is some other there. problem is there. Correct. So, Mr. What has to be done to them? Like, what should be the precautions and how do we really fix them? So, as you said that earlier, I understood the part of MRI. Now, the earlier part that we're talking about, if someone has a pain, so the basic understanding is that they have to strengthen the joint, which is, जैसे आपने बोला कि अगर चढ़ रहा है, then that could be the quadriceps dominant movement, and of course, Might be नीचे- a reason, might be a reason. Until unless you don't check, you won't come to know. Yeah, might be a One reason. thing. But you can, start with your basic rehab. If you are at home, you are a physio, go to the physio, go to the doctor, पूछो उनको Figure out क्या करो हो, पहले. figure out the समझो. diagnosis. Educate the patients first कि हुआ क्या है उनको. अगर उनको ही नहीं पता कि हुआ क्या है तो he is confusing more and more, and जितना confuse होगा उतना उनको पेन बढ़ेगा. Correct. ठीक है. First thing. Second thing, if you wanted to start your rehab exercise, Rehab, right? हाँ. First go to the mat. ठीक है. Do all open chain exercises first. ठीक है. Try to open your hip. Try to open your ankle, because this two big reason. If this two joint mobility restriction are there, then वो पूरा का पूरा लोड आपके नी में आ सकता नहीं में आ सकता. है. ठीक है. तो यूजिंग टाइटनेस के वजह से भी पेन हो सकता है. पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी. and 50% पॉसिबिलिटी. करेक्ट. ठीक है. नॉर्मली मुंबई के जैसे लाइफस्टाइल में वही होता है, हिप रिस्ट्रिक्शन, एंकल रिस्ट्रिक्शन. इसका तो हम भी काफी देखते हैं, जैसे कि when they come into sweat stretch class, अगर कहाँ पे भी नी लिफ्ट करके हिप का मूवमेंट बेस्ड मूवमेंट आ रहा है, वो 99% people, I'm talking about even women, can't even get the like even somewhere about the half range of motion. So I do understand that कितना टाइटनेस सबके हिप्स में होता है, and then काफी सारे में बैठे थे 90 डिग्री एंगल में, तो डेफिनेटली हैमस्ट्रिंग भी मेरे हाल से टाइट हो जाता है. हो सकता है. राइट. what would be the correlation of these pain to do with the blood circulation? अभी मैंने आपको पहले से जब भी शुरू किया था हमने टॉपिक, हमने ये कहा था कि ये जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा हेवी वेट में होता है, एट द सेम टाइम उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सेडेंटरी होती है, इतना जैसे इतना फिजिकली इतना मूवमेंट, जैसे कि आपका भी अगर हिप मोबिलिटी देखेंगे काफी बढ़िया इनकी हिप मोबिलिटी बाय द वे, लाइक तो इन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज दिखा रहा था जब मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, और इन्होंने मुझे करके दिखाया तो मैं तो मतलब हैरान ही हो गया था उस दिन. मतलब ऑफ कोर्स ही नोस अबाउट इट मच मोर इन डिटेल, लाइक उसका रेंज क्या होना चाहिए, वो ध्यान कैसे रखता है करके. सो what like so these people, or the people who find these kind of pain, are the people who is not physically moving that much. They do exercise 3 or 4 times but not fit. So is it to do something with the blood circulation, or if in case, of course हमें ये भी पता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, once you're working out, आपकी blood circulation बढ़ता है, आपकी टेंडन की और circulation बढ़ जाती है, and you have certainly a better health based joint. तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एग्जाम्पल यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द जिम. आज मेरा फर्स्ट डे. ठीक है. एंड आई एम वर्किंग आउट से लाइक वर्किंग सिंस 10 years. करेक्ट. एंड आज मेरा फर्स्ट डे जिम में. फर्स्ट जाके वेट उठाना, इट्स लाइक बुलशिट. फर्स्ट थिंग आई नोटिस के लोग जाके पुशअप करते हैं, पुलअप करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइजेस. ठीक है. दैट्स नॉट अ वे Right method राइट मेथड. to- इट्स लाइक कि यू आर डूइंग अ बेंच प्रेस ऑफ 60 kg on weight. Correct. 60 kg bench press and 60 kg pull ups or 60 kg let's pull down. ठीक है. आपने सेम वेट कर लिया. स्टार्ट डूइंग योर मोबिलिटी फर्स्ट. ठीक है. ट्राई करो मोबिलिटी इन कार्डियो. स्टार्ट विद द मोबिलिटी इन कार्डियो फर्स्ट. ठीक है. अभी क्यों बताओ आपने कहा कि मोबिलिटी एंड कार्डियो शुरू करो, क्यों? दैट दे नो द रीजन, एंड आई जेन्युइनली नो दैट दिस इज समथिंग फिटनेस इंडस्ट्री लैक्स, नॉट द पीपल हु हैज इंजरीज, हु हैज पेन, बट दिस इज बीन लैक्ड बाय द होल फिटनेस. अब कोई भी जिम में चला जाओ, मैं बता रहा हूँ, और 99% ऑफ जो जिम में जाते हैं वो लोग, उनको पता नहीं वो लोग क्या करें. दे जस्ट नो द मशीन्स. मशीन को कैसे वार्म तो करते नहीं वो लोग. अगर वार्म करते भी वो लोग ट्रेडमिल में आते चलते हैं तो 5-10 मिनट, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ कंप्लीट अप्रोच. So I think what he's saying, अभी मुस्तफा जो बता रहे, डॉक्टर मुस्तफा जो बता रहा है, काफी अहम हिस्सा है. अगर आपको हेल्थी रहना है, आपको देखो सब जिम इसके ही नहीं जाते कि one point is not just to get the results, right? Like वो वेट लॉस नहीं होता है. काफी सारा, जैसे कि मेरे जैसे लोग, हम आई लुक फिट, मेरा मेन गोल है कि मेरा जॉइंट्स, आई एम एट अबाउट 40+ ऑन द एज कैटेगरी, तो मेरा मेन फोकस है कि मैं हेल्दी रहूं. आने वाला 50-60 में मुझे कुछ भी दिक्कत ना हो. लाइक मेरी मम्मी जी है, वो भी जिम आती है, वो भी एक्सरसाइज करती है, एंड ओनली वन कंसर्न दैट शी हैज इज दैट मेरे घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए, एंड शी कम्स एवरीडे ब्रो, एवरीडे. वैसा है. तो आप एक अगर आप रूटीन बताना चाहेंगे आपके हिसाब से, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे आप काफी अच्छा बताया आपने कि सब जाके डायरेक्टली पुशअप्स मारते हैं, पुलअप्स मारते हैं, और आपने कहा कि अब मेरे हाल से वो कार्डियो कंडीशनिंग, आप हार्ट को कंडीशन करने की आप बात कर रहे हैं, एंड वंस यू मसल आप मोर लेंथ, मोर फ्लेक्सिबिलिटी पे आप काम करेंगे, तो एक बेहतर तरीके में आपका मूवमेंट बनना शुरू हो जाता है. आप कैसे बताएंगे उसको? सो
If I say it start with 15 to 20 minutes of warm up, That's a little longer one though. Maybe बता रहा maybe 5-6 मिनट खींच कर उससे ऊपर तो नहीं होता मुझसे. But anyways, that's how a physio speaks and a trainer speaks. 15-20 minutes of warm up first, हाँ then your strength should be around 30 to 40 minutes and cool down 10 to 15 minutes. ठीक है, ये आपका normal routine होना चाहिए. This is your protocol, basic Correct. protocol. Ideally होना चाहिए. Now in warm up there is a main subtypes. So first is your mobility part. As I say कि पूरा joint का mobility करो. ठीक है, full body mobility करो. But if you don't have a time, do one thing. You are doing the chest workout or you are doing your squats, Limbs, lower limbs. So do your hip, knee, ankle, lower limbs में or shoulder, your chest, tricep, chest, elbow, your wrist or maybe your spine. ठीक है, you can do this also. ठीक है, पूरा अगर नहीं हो पा रहा है तो. Second is your activations. If you are doing the chest, तो जितने भी synergist muscle है, तो we have a prime movers and a synergist muscle. Prime mover is like कि आप जो train कर रहे हो, वो muscle. जो move कर रहे हो, Chest के chest है. chest है. And synergist is your supporting muscles. Example, your anterior deltoid, your tricep, your forearm, your serratus. So this is activation. Activation करना है. And later on, raise your heart rate. Correct. ठीक है, raising your heart rate is the most important thing in the warm up. So example, raise your heart rate is in the sense you can do walking also. You can do fast cycling. You can do skipping and all, jumping jacks, skipping वगैरह जो भी हो. अभी ये सब करके you go to your strength Main training. zone. ठीक है, मेन जोन. वार्म अप जब तक खत्म नहीं हुआ, अगर आप डायरेक्टली स्ट्रेंथ के लिए जा रहे हो, चांसेस ऑफ इंजरी इज हाई. से पहले से अगर प्रिवेंट करना है तो फर्स्ट डू योर वार्म अप, देन गो फॉर योर स्ट्रेंथ एंड देन लेटर ऑन कूल डाउन. अभी बहुत सारे लोग पहले स्ट्रेच करते हैं, Static stretches वो भी करते हैं. स्टार्टिंग स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच एंड देन गो फॉर द ये अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड देन अगेन स्ट्रेच. दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू योर बॉडी टू इंजर मोर. अच्छा. Example, if you do stretched, what is stretched? Lengthening. Yeah, lengthening. If I say कि आप stretch करते हो, तभी you are blocking your nerves. Okay. It's not compress नहीं कर रहे हो आप. It's like कि आपका brain से muscle को signal कम जा रहा है. अच्छा. There is a signal from brain to your muscle. Every muscle there is a end plate. Correct. ठीक है, motor end plate. तो वो कम जा रहा है आपका. स्टिमुलस ही कम जा रहा है because you are already lengthening the muscle. आपने already इतना stretch कर दिया muscle को, contract आने में time लगेगा. This is called as a lengthening, stretching. अगर आपने 10 seconds से ज़्यादा stretching कर लिया तो muscle is like little sleepy. Okay. ठीक है, उसको कूल डाउन बोलते हैं. आप कूल डाउन में करो वो चीज़, सेम चीज़. ठीक है, एंड वो भी आप 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स कर सकते हो, नॉट मोर देन. लोग 1-1 मिनट 2-2 मिनट करते हैं. कुछ मतलब यूज ही नहीं है उस चीज़ का. टाइम वेस्ट कर रहे हो आप. तो व्हाट शुड बी आइडियल वार्म अप? वार्म अप के दौरान हम क्या नजर में रखना चाहिए? वार्म अप के स्पेसिफिकली ओनली ऑन द वार्म अप. या मोबिलिटी क्या होना चाहिए मूवमेंट? जैसे आपने कहा कि लेंथनिंग या फिर स्टैटिक स्ट्रेचेस होने चाहिए एंड में, जो कि मैं भी मानता हूँ. या इफ यू डू डायनामिक मोबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कि मूवमेंट क्रिएट करते हैं, राइट? मूवमेंट क्रिएट करता है. सेकंड थिंग, योर मोबिलिटी शुड बी फुल रेंज. एग्जांपल, इफ यू डूइंग द शोल्डर का कोई मूवमेंट, शोल्डर प्रेस करना है एंड वार्म अप में आप सिर्फ ये कर रहे हो, तो मतलब ही नहीं है उसका. मतलब ही नहीं है. शोल्डर मूवमेंट इज फुल. ठीक है, शोल्डर का आपको फुल करना है, रेंज ऑफ मोशन, तो वही करो. लेकिन हाँ वही करो. वार्म अप में वो कर सकते हो आप विद द स्टिक. यू कैन डू हाँ शोल्डर फ्लेक्शन और शोल्डर डिस्लोकेशन आल्सो यू कैन डू. ठीक है, मेक सेंस. हाँ है ना, लेकिन लोग करते सिर्फ इतना ही. कोई सेंस नहीं उस चीज. करेक्ट, फुली मेक सेंस. तो फुल रेंज ऑफ मोशन इन द मोबिलिटी इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. Sounds amazing. I'm going to make another video with Mustafa about what are the few methods of doing the right method of dynamic based warm up. वो काफ़ी बढ़िया रहेगा. और genuinely मैं काफ़ी सारे जिम में जाता हूँ, काफ़ी सारा सालों से जिम में काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये एक जगह है. सबको पता है कि चेस्ट प्रेस कैसे करना है, बाइसेप्स कैसे करना है, बट ये एक जगह है कि इतनी सारी स्कोप है सबको बेहतर होने के लिए. एंड देखो, आप 30-35 के बाद जिम इसके नहीं जाते कि आपको शायद बाइसेप दिखा के इसको पटाना है. आप इसके लिए जाते हो कि आपको हेल्दी रहना है. मैं जस्ट सच बता रहा हूँ. और आपको आपकी, जैसे कि आप लोग देखते हो कि काफ़ी हद तक काफ़ी जन एक्सरसाइज करते हैं, उनके टेंडेंस टूट जाते हैं. मेरे भी टेंडन टूटे थे काफ़ी हेवी लिफ्टिंग के कारण काफ़ी सालों पहले. उस वक्त में मैं कुछ भी स्ट्रेच नहीं करता था. आई यूज्ड टू बी डायरेक्टली गोइंग. मेरा फर्स्ट सेट होता था 60 किलो का स्क्वाट डायरेक्टली, मतलब नॉट बॉडी वेट, 60 किलो डाल के मैं स्क्वाट मारता था. टू वर्क एट जिम, फिटनेस फेस्ट में काम करता था काफ़ी सालों पहले. बट ऑफ कोर्स देन यू डू लॉट ऑफ कोर्स एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू मीट पीपल लाइक Mustafa, then you get educated. Mustafa, tell me one thing, that most of the people who go to the gym, they are very stiff. They और काफ़ी ऐसे चलते हैं, वो एकदम सलमान खान जैसे एकदम टाइट हो जाते हैं. उसका कारण क्या हो सकता है? This is two thing, maybe, as I know. मैं ऐसा नहीं हूँ ना. I don't walk like that. ठीक है, as I know, first is your posture.
करेक्ट. ठीक है, अपराइट पोस्चर. ठीक है, सो मैनी पीपल फील्स के आप जितना अपराइट पोस्चर में चलेंगे उतना बॉडी ज़्यादा दिखेगा. इज लाइक करेक्ट. हाँ. ठीक है, अपराइट पोस्चर. हाँ. सेकेंड इज योर माइंडसेट. ठीक है, अभी नॉर्मली ट्रेनर्स ऐसा होता है कि इफ़ यू डू ट्रेनिंग टू समवन, ठीक है, अगर आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो वो आपके पास नहीं आने वाला है. करेक्ट, सही बात है. ठीक है, तो आपको जितना टाइट करना चौड़ा रहना उतना चौड़ा रहो. उतना रहो. बट हाँ, देयर इज अ मेन थिंग आल्सो दैट कि लेग्स टाइट होना या बॉडी मोर स्टिफ्ड. ठीक है, वो पोजीशन में ज़्यादा स्टिफ हो आप स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेट रख ही नहीं सकते हो. हमारा बॉडी कभी भी स्ट्रेट रहा ही नहीं है. एज अ चाइल्ड एज इन वूम वो एक सी शेप कर्व में होता है, राइट. करेक्ट. ठीक है, अभी डॉक्टर्स, ट्रेनर्स और फिजियोज आप सोशल मीडिया जितना देख लो, दे आर लाइक सिट स्ट्रेट. पर हम कभी थे ही नहीं ऐसे. हम कभी बचपन से थे, थे. हम तो हमेशा से ऐसे ही थे. ऐसे ही थे. ठीक है, मोर द यू वुम से ऐसे थे. वहाँ अगर बचपन से अगर वैसे निकले हम, किसी ने बोल दिया कि आज सिट सीधा बैठो, होने नहीं वाला. नहीं होने वाला है. करेक्ट. ठीक है, तो spine is not a straight, it's like a S-shaped curve. Correct. So we have a curve in the cervical also, we have a curve in thoracic also, we have a curve in the lumbar Lumbar also. also. It's like a S, पूरा S-shaped Correct. curve है, right? Correct. ठीक है, अभी आप जितना भी straight बैठो वो straight होने नहीं वाला. Correct. And if the spine straight, तो उसका loading जो है वो uneven. हाँ, uneven हो जाएगा and पूरा ओवर प्रेशर आपके हिप में, नी में, एंकल में आ सकता है पॉसिबिलिटी. हाँ, इंजरी ऑल्सो आफ्टर दिस स्ट्रेट स्पाइन. ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि स्पाइन स्ट्रेट होने की वजह से बहुत सारे इंजरीज हो सकते हैं, लेकिन हाँ चांसेस हैं, हो सकते हैं. हो सकता है. 100% चांसेस नहीं, 50% चांसेस तो है, हो सकता है. अगर आपने ध्यान दिया है, लाइक 99% of people who comes to do a physio session, जहाँ तक मैंने ध्यान दिया है, is the people who does gymming और काफ़ी हद तक वो लोग एथलीट्स होते हैं, वो ही इंजरी करते हैं. लाइक मेरे तो पिलाटिस में इतना देखता है बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर्क इन फुल रेंज ऑफ मोशन. बट जिम में मैंने काफ़ी सारा जन को देखा है, नॉट ओनली हियर व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन द अदर जिम्स आल्सो इन द पास्ट. व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ डू दे अवॉइड दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस, इंजरी का सिचुएशंस? लाइक फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको ये भी बता देता हूँ. तो मैं आपको पहले मिला था कि मुझे साइटिका प्रॉब्लम था, और मैं जब भी डेडलिफ्ट करता था मुझे इतना बड़ा अच्छा लगता था कि यार मैं इतना 200 किलोमीटर इतना स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ मैं. बट जब इनसे मिला तब मुझे मालूम पड़ा भाई मैं तो स्पाइन में कुछ है ही नहीं है मेरा. आई हैव ब्रोकन माई स्पाइन इनटू डिफरेंट सेक्शंस बिकॉज ऑफ हेवी लिफ्टिंग. तो अगर हेवी लिफ्टिंग करे, काफ़ी सारे ट्रेनर्स ये भी बिलीव करते हैं कि 1 rep मैक्स, ऑफ कोर्स आपकी मैक्सिमम मसल जो वर्क होता है या फिर मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 1 rep मैक्स में काफ़ी हद तक हो जाता है. आप क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट आर द थिंग्स दैट टू बी केप्ट इन माइंड? इंजरीज को कैसे अवॉइड करें? एंड दिस इज 1 rep मैक्स इज द राइट अप्रोच ऑन द ट्रेनिंग मेथड पैटर्न्स. ठीक है, Are we built for that? if you prevent your injuries, the first thing, do your warm up properly. Second, come to the strength part. ठीक है, example, if your muscle capacity is like 100 kgs to lift, ठीक है, आपने 100 kgs उठाया, ठीक है, अभी आज ही मुझे 110 kg तो नहीं जाना है, आज तो मुझे 105 kg तो नहीं जाना है, या किसी ने बोला है कि चलो आज ईगो लिफ्टिंग करना है तो वो तो नहीं करना. I think ego lifting, that's the right word. हाँ, तो जस्ट टेक अ लिटिल टाइम टू 110 तक पहुंचने के लिए, ना कि आज ही आज करना है. फर्स्ट थिंग, लोड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑप्टिमल लोड. ठीक है, जितना आप ऑप्टिमल लोड आपकी बॉडी को रख ले सकते हो उतना ही अच्छा आपका मसल भी बनेगा, इंजरी भी प्रिवेंट होगा. तो टेंडन इंजरीज, लिगामेंट इंजरीज, मसल इंजरीज, ये नॉर्मली लोड की वजह से ही होता है. Can you emphasize on the topic of this tendon and muscle injuries because of the load? What should be the ideal rep range? जहाँ से हम हाइपरट्रॉफी के बारे में बात करते हैं, मसल बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, हमने हमेशा यही प्रैक्टिस की कि 8 से 12 इज अ गुड रेंज. ऑफ कोर्स जहाँ तक मैंने भी किया है मुझे लगता है कि काफ़ी सेफ रेंज है. उधर आपकी इंजरीज होने की चांसेस काफ़ी कम होती हैं. बट मैंने ये भी काफ़ी सारे ट्रेनर्स को देखे हुए हैं कि वो लोग 1 rep मैक्स 2 rep मैक्स करते हैं. मैंने भी किया है एक आध बार थोड़े टाइम तक. इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ क्रॉसफिट प्रैक्टिशनर, लाइक उस वक्त में हम क्रॉसफिट चलाते थे, क्रॉसफिट एफिलिएट थे, तो क्रॉसफिट में काफ़ी सारा 1 rep मैक्स होता है. तो बट दैट्स ह्यूजली जहाँ तक मैंने किया है, बिकॉज आप यही कोशिश करते हो, जैसे आपने बोला कि ईगो लिफ्टिंग करने की कोशिश, आप यही कोशिश करते हैं कि मैं पिछले बार से इस बार तक कैसे लिफ्ट करूँ. बट देयर इज नो डेफिनेशन टू इट. आप ये नहीं मेजर कर रहे हो कि एक्चुअल में स्ट्रेंथ बढ़ी है या फिर एक्चुअल में मेरा वजन बढ़ा है ताकि मेरा स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, या फिर मेरा मसल मास बढ़ा. हम ऐसे ही लिफ्ट करें बिकॉज ऑफ यार मुझे हमें कुछ अलग करना है या फिर दूसरे इंसान से ज़्यादा लिफ्ट करना है. तो आप कैसे इसको अप्रोच करना चाहेंगे या फिर आप क्या बताना चाहेंगे हमें? सो देयर इज अ मेनी थिंग्स
like power, if you want to train your power, if you want to train your strength, if you want to train your hypertrophy, मतलब hypertrophy आपको ज़्यादा करना है, सबके repetitions वगैरह अलग होता है, sets अलग होता है. Correct. So in hypertrophy you can take around 8 to 12 repetitions, 3 to 5 sets. 5 sets, correct. ठीक है. In power you can do around 2 to 3 repetitions, more number of sets, like 6 sets, 5 sets, 7 sets, 8 sets. करेक्ट. वो लोग काफी ब्रेक भी लेते हैं उसके दौरान, बैठ के आराम से करते हैं. आराम से करते हैं. ठीक है. तो the more you do you rest in between your sets, उतना set recover. 1 to set 2, रिकवर ज़्यादा अच्छे से होगा, and second set आप easily कर पाएंगे. करेक्ट. Second thing, person who is in the gym, ठीक है, and इसको prevent करना है. ठीक है. Normally we do a more of static training in the gym, as I noticed more. ठीक है. Example, if you're doing rowing, ठीक है, rowing हम लोग straight यही करते हैं normally. No one does this पूरा ऊपर. ठीक है. तो this is your spine movement also with your scapula movement. ठीक है. The more you do a spine movement, scapula goes little more in front, then goes behind and the spine straight. ठीक है. ये आपका पैटर्न होना चाहिए. Natural movement pattern. Natural movement pattern. होस्ट करके कंपनी था, कंपनी है इनफैक्ट, ना था नहीं है. उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट लॉन्च की थी. मतलब अगर आप लैट पुल ऑन कर रहे हैं, पूरा बॉडी मूव होता है उसके साथ, विच इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मी. बैंड्रा में एक जिम में है, अभी भी है, आई थिंक फिटनेस करके एक जिम है, वहाँ पे ये पूरा बॉडी मूव होता है. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमने इतना यूज टू नहीं है, तो उनको थोड़ा वियर्ड लगता है उसमें. बट जो आप बता रहे हो अभी, अगर पूरा स्पाइन का मूवमेंट स्कैपुला के साथ आना है, देन मेक्स अ लॉट ऑफ concept we लॉजिक. can do in the strength training also. करेक्ट. सेम कॉन्सेप्ट एज यू डू डेडलिफ्ट. ठीक है. डेडलिफ्ट करने के बाद आप स्पाइन फ्लेक्शंस भी कर सकते हो. ठीक है. इफ यू डेडलिफ्ट नॉर्मली स्पाइन स्ट्रेट करके रखा, ऐसे करके करते हैं. स्पाइन Correct. स्ट्रेट करके आप करो, स्पाइन स्ट्रेट करके करो. सो देयर इज अ मेनी एक्सरसाइजेस, स्पाइन फ्लेक्शन राउंड करके भी आप कर सकते हो. करेक्ट. ठीक है. वो भी आप कर सकते हो. सेकंड थिंग, इफ यू डू स्क्वाट्स, नॉर्मली स्क्वाट्स पूरा नहीं जाता है कभी. हाँ करेक्ट. हाँ, E2G बोलते हैं, एस्टोग्रास पूरा होना चाहिए नीचे. हाँ, एस्टोग्रास, हाँ, that's a very used term. More weight you can lift in 90 90 में, हाँ. या 90 से easily ऊपर आ सकते ऊपर आ सकते हैं. लोगों को डर लगता है कि हम नीचे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा नीचे. हाँ, तो there is a ये सपोर्टर आल्सो, सपोर्ट स्टॉपर यूज कर सकते हो उस मशीन में. नहीं तो आप अगर फ्री वेट कर रहे हो तो पीछे कोई. बट उससे एक्चुअली अगर आप 90 में जा रहे हो, आई बिलीव दैट ओनली क्वाड्रिसेप्स काम करते हैं. बाकी की आपकी जो बैक का चेन है, पोस्टीरियर चेन है, वो तो काम नहीं करेगा पूरा कंप्लीटली. ग्लूट्स वगैरह काम नहीं काम कर, मतलब उससे एक्चुअली फायदा भी नहीं होगा. मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ gluteus maximus, कुछ भी काम नहीं कर रहा है. हाँ, minutely. हाँ, more dominantly is quadricep, less dominantly your on the other muscle groups that we have. if you do a full range of motion, more dominantly your quadricep and glutes both. That's any even better. है ना? Okay, sounds amazing. मुझे मैं ask you a very special question. देखो फिजियोथेरेपी या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो है, जब किसकी इंजरीज होती है तब जाता है. जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम कियान को इनके पास, चाहे कियान की इंजरीज हो ना हो, हम भेजते हैं इनके पास जस्ट टू एनालाइज थिंग्स. बिकॉज हम कियान को आज का सोच के नहीं ट्रेन करें. हम वी नो दैट डाउन द लाइन 1-2 years ही हैज टू बी द वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द क्रिकेट फील्ड. तो हमें पता है कि वो 1-2 दिन में नहीं है, मतलब सालों लग जाते हैं ऐसे बनने के लिए. तो हम इनके पास भेज देते, मुस्तफ़ा एक बार चेक कर लो, देख लो यार सब ठीक है, काइंड ऑफ स्टफ. व्हाट वुड यू रेकमेंड? बिकॉज जहाँ तक मैंने देखे काफ़ी सारे हद तक सब एक बार कुछ टूटने के बाद या फिर उनको कुछ दर्द है तब भी आपके पास आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए आता है. व्हाट वुड यू रेकमेंड? व्हाट शुड बी द आइडियल मेथड दैट एवरीवन शुड अप्रोच? तो व्हाट आई फील इज एवरीवन हैज अ ओन फिजियोथेरेपिस्ट फर्स्ट. तो मुंबई में तो होना ही चाहिए. ठीक है. एक फिजियोथेरेपी मतलब आप रखो अपना, कोई इस पे आपको ट्रस्ट हो कि नहीं ये मुझे कभी भी इंजरी रहेगा तो ये ठीक करके देगा. ठीक है. सेकंड, एज यू से कि आप ऐसे ही डायरेक्टली इंजरी है तभी ना जाओ फिजियो के पास, आप चेक करवाने जा सकते हो. ठीक है. अगर कियान आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो कियान को पूरा चेक करना पड़ता है कि एंकल का मोबिलिटी कैसा है, एंकल का स्ट्रेंथ कैसा है, नी का मोबिलिटी कैसा है. रिसेंटली हैज इंजरी इन द हिप आल्सो. ठीक है. हिप में इंजरी हुआ, क्वाड्रिसेप स्ट्रेन हुआ था. ठीक है. अभी ये क्वाड्रिसेप स्ट्रेन एक दिन में नहीं जाने वाला, लेकिन ये क्यों हुआ समझने में मुझे भी टाइम लगा. ठीक है. सेम साइड का हिप रिस्ट्रिक्टेड हुआ था, सेम साइड का एंकल. इनफैक्ट कियान को काफ़ी सारे प्रॉब्लम था, अगर आपने ध्यान दिया. और एक काफ़ी सारा हद तक क्रिकेटर्स में होता है, इनके पास जाके हमें मालूम पड़ा था ये सब प्रॉब्लम है करके. आपकी चेन्स होते हैं राइट,
तो कियान बिकॉज वो हमेशा एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो उनके लेफ्ट फुट आगे रहता है, यही मूवमेंट बनता है हर वक्त में, तो इनका एक साइड में तो उनका स्पाइन में बड़ा सा काफ़ी सारे प्रॉब्लम था। अब थोड़ा उसके बारे में बताएंगे क्या होता है एग्जैक्टली, एंड अगर क्रिकेटर एथलीट स्पेशली वो उन लोगों को भी कितने बार एक फिजियो के पास आना चाहिए, कितने बार उनको एक पूरा एनालाइज या फिर एक असेसमेंट होना चाहिए? Once in a month it would be great अगर आपने फिजियो से असेसमेंट किया तो। असेसमेंट इज लाइक योर नॉर्मल रूटीन चेकअप, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड चेकअप करने के लिए, वैसा एक रूटीन चेकअप होता है। सो उसमें मूवमेंट असेसमेंट होता है कि आपका स्क्वाट्स कैसा है, मूवमेंट असेसमेंट बोलते हैं आप? मूवमेंट असेसमेंट। और जहाँ तक मुझे मेरे ख्याल से ये होता है, द रीजन बीइंग इज दैट आपकी लोडिंग जो होती है वो एक तरीके, बिकॉज आपकी इंजरीज की वजह से बॉडी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं मूवमेंट पैटर्न को, और जहाँ तक आपको शायद मालूम नहीं पड़ रहा बट आप उसी के ऊपर लोड बनाए जा रहे हो, करे जा रहे हो, गलत तरीके से चले जा रहे हो, उसके वजह से फिर दूसरी साइड में एक पेन होता है। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? करेक्ट, राइट? So it's like if your ankle sprain on the lateral side might be a possibility, आपको पहले से हो सकता है ये फ्लैट फुट, अगर नहीं भी है तो हो जाता है आफ्टर द एंकल स्प्रेन, अगर सीवियर एंकल स्प्रेन हुआ तो लेटरल साइड का, सेम साइड का नी इज गोइंग टू इनवर्ट, ठीक है, एंड सेम साइड का ग्लूट्स मीडियस इज वीक, ये पूरा चेन बनता है कॉलेज लैटरल सब सिस्टम। तो ये जो चेन है वो अगर हैम्पर्ड हो गया, एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, ठीक है, बड़ा सा स्ट्रिंग है, देयर इज अ कट इन द स्ट्रिंग इन द मिडल, ठीक है, अगर ये Strength. हाँ वो हैम्पर्ड होगा, वो स्ट्रेंथ जो है उसका थ्रेड का वो निकल जाएगा। तो ये ए या बी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो एंकल में प्रॉब्लम हो सकता है, हिप में प्रॉब्लम हो सकता है, बैक में प्रॉब्लम हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। टूटा किधर और है, प्रॉब्लम किधर और है, ठीक है। अगर आपने वही, अगर मैंने पहले बोला था, अगर आपने एमआरआई निकाला तो वो बोलेंगे कि एमआरआई हुआ है, लेटरल एंकल स्प्रेन है, यू हैव टू रेस्ट, आइस करो, कंप्रेशन करो, एलिवेशन करो, टेक रेस्ट, हो जाएगा वो खत्म, ठीक है। लेकिन वो नहीं होने वाला है, बिकॉज आफ्टर 1.5 ईयर के बाद सेम साइड का हिप प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। ये 80% ऑफ द केसेस में होता है, 80% ऑफ द केसेस में होता ही होता है सेम साइड का हिप इंजरी कहाँ पे, बट इंजरी का पेन का शुरू हो रही है आफ्टर सम टाइम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोगों को एक फिजियो के पास जाना चाहिए, आपकी असेसमेंट करना चाहिए, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कौन सी मसल्स के ऊपर कितनी लोड है और उसको एग्जैक्टली कैसे रेक्टिफाई करा जाए, उसको किससे ध्यान रखा जाए। या ट्रू, इफ एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू जिम, ठीक है, मेरे पास पेशेंट आए थे क्लिनिक में, ठीक है, उनकी मतलब मम्मी आई थी, वो ऐसे आ गए साथ साथ में, तो उन्होंने सिर्फ मुझे पूछा कि आई एम गोइंग टू द जिम फ्रॉम टुमारो आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। मैंने कितने महीने का ब्रेक लिया, महीने का नहीं, साल का ब्रेक लिया, आफ्टर 1.5 ईयर के 1.5 ईयर में हम लोग, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी कल से, तो व्हाट शुड आई कीप इन माइंड। तो मैंने बोला कि मैम कैन आई चेक वंस, मैं चेक करता हूँ, मैं आपको कुछ पेमेंट नहीं लूंगा आपसे, सिर्फ चेक करता हूँ आपको। करेक्ट। तो शी इज लाइक कि हाँ ठीक है चलो, ठीक है। शी हैज अ सेम साइड का रिस्ट्रिक्शन ऑफ द हिप, नी का नहीं, एंकल का रिस्ट्रिक्शन, हिप का रिस्ट्रिक्शन, एंड सेम साइड का शोल्डर इशू, ठीक है, राइट शोल्डर इशू। तो मैंने सिर्फ उनको इतना बोला कि फर्स्ट डू योर मोबिलिटी फॉर फर्स्ट वीक, ठीक है, देन लेट मी नो कि कैसा कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपने कुछ रूटीन दिया उनको करने के लिए? एक रूटीन दिया था, ओके, मैं सिर्फ लिख के सब कुछ बोला था कि ये चीज़ आपको करना है, लेट मी नो आफ्टर 1 वीक कैसा लग रहा है आपको, जिम मत स्टार्ट करो, पहले रूटीन करो जाकर, ठीक है। आफ्टर 1 वीक शी मेंशन में कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ करके, अभी आई डोंट हैव अ शोल्डर पेन, आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्टेड इन द हिप, जो मुझे पहले से बैठने के बाद लगता था, हाँ। तो शी वर्किंग कॉर्पोरेट जॉब, शी सिट लाइक दिस, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऐसा, ओके। तो मे बी हो सकता है पॉसिबिलिटी रीजन, ठीक है, ज्यादा बैठ के हुआ, शी सिट अराउंड फॉर अराउंड कंटिन्यूअसली 8 to 9 आवर्स कंटिन्यूअसली, वो तो होते हैं शिफ्ट टाइम, मीटिंग है ना उनका, तो वो नहीं उठते उधर से उस चेयर पे से। अभी ये चीज़ है, मैंने उनको बताया 1 वीक के बाद, शी मैसेज मी सामने से कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, ये बराबर लग रहा है, कैन आई स्टार्ट द जिम। मैंने बोला यू कैन स्टार्ट द जिम नाउ, ठीक है, बेटर लग रहा है ना, यू कैन स्टार्ट, ट्राई कि कैसे कुछ पेन है क्या। आफ्टर 1 वीक के बाद शी केम कि हाँ आई हैव अ प्रॉब्लम इन द सेम शोल्डर में, अभी स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम,
बिकॉज शी लिफ्ट डायरेक्टली। मे बी अगर वो फर्स्ट डे से लिफ्ट करते और ज़्यादा प्रॉब्लम होता, हो सकता है, करेक्ट, हो सकता है ना। तो ये अगर आपने पहले असेसमेंट कर लिया तो आपको ये मिल जाता है कि हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, देयर इज अ प्रॉब्लम द नी एंकल में, आप ये fix चीज़ कर देते फिक्स कर लो पहले। तो पेन जो था वो बहुत माइनर था, 0-10 में से 2 पेन था, मतलब एक नेग्लिजिबल पेन, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो अगर ये पेन के साथ अगर वो आया है मेरे पास, मूवमेंट फिजियोथेरेपी क्लिनिक काफ़ी नज़दीक है, इन्फिनिटी 1 से काफ़ी नज़दीक है, वहाँ पे है। तो एक बार इनसे मिलो, इनसे अपॉइंटमेंट लो, इनसे मिलो, इनसे बात करो। एंड आई एम श्योर दैट, ट्रस्ट मी, अगर मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन अबाउट 23-24 years and I've worked with n number of people who are like big celebs. If I am recommending Mustafa, मतलब there is something in him that I firmly believe. And then जब से इनसे मिला हूँ मैं, and I know a lot of physiotherapists, trust me, I know a lot of them, but जब से इनसे मिला मैं कभी किसी के पास गया भी नहीं हूँ, एक भी बार। तो एनीवेज, मुझे व्हाट इज फिटनेस फॉर यू? आप अगर आप फिटनेस के बारे में बात करेंगे, अगर आप कह रहे हो कि यार यू आर अ फिट पर्सन, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू वुड कंसीडर टू से और कॉल समवन ओके दिस पर्सन इज फिट फॉर मी? सो कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन योर ओन टर्म्स एज अ फिजियो, यू वुड कॉल हिम फिट? व्हाई वुड यू? विराट कोहली, व्हाई वुड यू कॉल देम फिट? बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे भी बनना है, या फिर मुझे कियान को ऐसे बनाना है, जेन्युइनली बता रहा मैं, कियान को ऐसे बनाना है मुझे, विराट या फिर रोनाल्डो। हम एक्चुअली हम ये करते हुए काफ़ी सारे टाइम हम लोग, आई कीप वॉचिंग लॉट ऑफ इंस्टाग्राम, बट देखो इंस्टाग्राम में एक एल्गोरिथम होता है, आप जो चीज़ देखते हो काफ़ी आपको दिखाता है। तो रोनाल्डो की वीडियो काफ़ी सारे देखता हूँ, विराट का भी काफ़ी देर देखता हूँ, तो इनको वीडियो मुझे दिखाते ही रहते हैं। तो आपके हिसाब से वो क्यों फिट कहते हैं आप? लाइक व्हाई डू यू कॉल देम फिट? देयर इज अ पैरामीटर फॉर द स्ट्रेंथ, यू कैन डू स्ट्रेंथ आल्सो, यू कैन डू कार्डियो आल्सो, ठीक है। आप अपने जो स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसमें अपना बेस्ट हो, दैट्स व्हाई दे आर लाइक दे आर इनटू ऑलराउंडर्स ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ स्ट्रेंथ कर रहे हैं, सब कर सकते हैं। हाँ सब कर सकते हो वो तो, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी बेस्ट है, ठीक है। आप कार्डियो भी अच्छा है, ठीक है। अगर आपको कार्डियो अच्छा नहीं, स्ट्रेंथ अच्छा है तो मतलब नहीं। हाँ ये तो नहीं है। तो मुस्तफा के कहना है कि आपको एक एथलीट बनने के लिए आपके पास हर पैरामीटर्स, हम कह रहे हैं कि 10 पैरामीटर्स। इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द एथलीट इज माइंडसेट एंड स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप कोई भी एथलीट्स को देख लो, अगर उनके पास एक प्रॉब्लम्स आए वो लोग सॉल्यूशन बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं। हाँ, और हम जो भी एक नॉर्मल पीपल को देखो, कॉर्पोरेट जॉब्स वाला, स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस हो जाता है बहुत जल्दी, स्ट्रेस हो जाता है। हाँ, आप क्या क्या बताएंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके? आप कुछ हमें बता सकते हो, लाइक हाउ इट हैज बी डन? स्ट्रेस, देयर इज अ, आपके पास काफी सारे कस्टमर्स भी आते रहेंगे जो दैट्स कि नॉट माय स्पेशलिटी, ऑफ कोर्स, मतलब एज अ फिजियो, बिकॉज आई एम श्योर दैट, देखो अगर आप काफ़ी हद तक आप स्ट्रेस्ड हो, आपकी कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाती है, उसके कारण आपकी फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो जाती है, जहाँ पे आप डेफिनेटली वीक भी हो जाएंगे। तो क्या अगर आपके पास कोई कस्टमर आते हैं जहाँ पे आपको पता है कि वो इंसान के अंदर शायद स्ट्रेस से भी ये हो रहा है, व्हाट वुड यू सजेस्ट देम?
सो आई टॉक टू हिम या हर मोर एंड मोर, ठीक है. मतलब अब पेशेंट आया है, पेशेंट को स्ट्रेस लग रहा है कि पेशेंट को स्ट्रेस है, ठीक है. आई जस्ट टॉक टू हिम कि भाई हुआ क्या है, मतलब अगर मुझे ऐसा है कि मैं जान सकता हूँ तो वो चीज़ मैं जानूँ, मतलब हुआ क्या है, घर में कुछ तकलीफ बांटने से कम होता है. बांटने से कम होता है, ठीक है. बट सेम मैं सेम पेशेंट्स के अटेंडर्स को बोलता हूँ कि हाँ आप जाके घर में बात करो, उनको सुनो हुआ क्या है. मेनली मेल्स आर नॉट ओपन टू द स्ट्रेसेस, थोड़ा ईगो होता है. ईगो होता है भाई, ठीक है. तो मेनली नहीं होता है, मेंस नहीं होते हैं. तो उनको जितना पूछेंगे आप वो लोग बताएंगे, खुल जाते हैं, बताते हैं. खुल जाते हैं, बताते हैं, एंड तभी उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है. फर्स्ट थिंग है. सेकंड, आई टेल टू माय पेशेंट्स के व्हाट एवर डू यू लाइक यू डू, ठीक है. वंस इन वीक एटलीस्ट. एग्जांपल, वन ऑफ माय पेशेंट, ठीक है, उनको घूमना बहुत पसंद था, ठीक है. बट वो 1 मंथ नहीं जाते थे पूरा, एंड वो 1 मंथ के बाद एक बार जाते थे, ठीक है. व्हेनेवर यू गो टू द लाइक वेकेशन ना, उनका पेन चला जाता था. अरे बाप रे. बैक पेन, हाँ उनको बैक पेन नहीं होता. हैप्पीनेस मतलब फ्री होता है दिमाग. हाँ, तो मेरे को एक चीज़ बताया कि आप वंस इन अ मंथ जाते हो, राइट, वंस इन ट्वाइस मंथ, ठीक है. तो आप क्या करो, आप 2 हफ्ते में एक बार छोटा ट्रिप करो, यहाँ से किधर और नजदीक, ड्राइविंग डिस्टेंस, ठीक है. बट वो जाके आप जहाँ पे भी जा रहे हो शांति से जाओ, मतलब आप ऐसा नहीं हो कि बहुत हेक्टिक जा रहे हो, हेक्टिक आ रहे हो, ठीक है. सैटरडे ट्रिप किया, संडे ट्रिप किया, एंड देन कम बैक टू द मंडे मॉर्निंग, ठीक है. तो उनका पेन सच में कम हुआ इससे, ठीक है. तो ये उन्होंने इवन आई बिलीव इन माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ग्रो. मतलब अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है तो माइंड होना चाहिए. चाहे लाइक मैंने भी अपना टेंडेंट तोड़ा था, आपको बताइए, तो वहाँ पे मुझे पता नहीं था अभी क्या करूँ, बट एक फेथ था अंदर यार, मैं इसको मतलब हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मैं वापस स्क्वाट मारूंगा, वापस सब कुछ कर रहा हूँ मैं. एंड आई थिंक माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल. अगर आपके पास आपकी माइंड सेट एक बार काफी फर्म हो गया है ना, और आप जैसे मैं रोज उठता हूँ ना सुबह में, आई इन्वेस्ट अबाउट 5 मिनट्स टू वॉच दी मोटिवेशनल वीडियो. तो आजकल मैं 5-6 किलोमीटर भागता उठ के, तो होता नहीं है. आपके जैसे बोलने के लिए काफी कारण है, आप स्ट्रेस्ड हो, आप लेट सोए हो, बट वी मेक इट व्हेन डू दैट, एंड आई एक्चुअली गेट दैट इंस्पिरेशन. A couple of people that I watched them on Instagram, and वो लोग 22 किलोमीटर भाग लेते हैं एक ही 12. तो मैं यार वो लोग 22 कहते तो मैं तो कम से कम 6 तो शुरू कर सकता हूँ. I can do this much. So mindset plays a huge role in anything that has to be done. Okay, Mustafa, now another aspect of it. So काफी सारे जन जो चाहते हैं कि अपना बच्चा काफी फिट हो जाए करके, बट अभी फिट होने के लिए काफी पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि उनको फिट कैसे करना है करके. एक एस्पेक्ट है कि वो लोग काफी वजन बढ़ जाते हैं उनका at a very young age, and especially cities like Bombay और एनी मेट्रो सिटीज फॉर दैट मैटर, बिकॉज फिजिकल मूवमेंट्स आपको काफी कम है. अगर गांव में जाएंगे वो नारियल के पेड़ में चढ़ जाते हैं, सब कर लेते हो लोग, खेलते कूदते हैं, काफी फिजिकली एक्टिव होता है. तो जितना खाए उतना पच जाता है. इधर क्या होता है, जितना खाया, एक तो प्रोसेस फूड खाते हैं तो वैसे ही मोटे हो जाते हैं. तो थोड़ा आपके हिसाब से थोड़ा उसके बारे में बताओ, इफ यू कैन ब्रिंग इन सम लाइट्स ऑन दैट. एट द सेम टाइम, एट व्हाट एज दे शुड स्टार्ट गोइंग टू द जिम to look after themselves, ताकि वो मोटा भी ना बन जाए. At the same time, it doesn't hamper their growth ladders. They have different growth. I believe that 3 or 4 of them. कितने होते हैं, क्या होते हैं exactly? So epiphyseal bone होते हैं. Yeah, there's a growth plate in. Growth plate कहा जाता है उसको, correct? Growth plate. ठीक है. नॉर्मली चिल्ड्रंस का जो बोन होता है, हमारे बोन होता है लाइक ह्यूज डिफरेंस, ठीक है. सो एग्जांपल 18 इयर्स के बाद ऑसिफिकेशंस आर कंप्लीटली ओवर, करेक्ट. मतलब आपकी हाइट 18 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी. हाँ, मोर लेस. हाँ, ठीक है. ऑसिफिकेशंस मींस के यू हैव अ 2 बोन्स, नॉर्मली यू हैव 2 बोन्स, तो फ्यूज होके एक बन जाता है. करेक्ट. ठीक है, अगर बनना रहेगा तो करेक्ट. ठीक है. तो एक लॉन्ग बोन जैसे लाइक फीमा, तो वी हैव अ 3 बोन इन जब बच्चे होते हो, तो जब बड़े होते हो वो एक ही बोन में समझ गया, वो मौज हो जाता है. हाँ, मौज हो जाता है प्रॉपर्ली. अभी बच्चों में आप जितना कूदते भागते, ठीक है, नॉर्मली हेवी ट्रेनिंग से बच्चों में वो ग्रोथ जो फैक्टर है वो कम हो जाता है, रुक जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट करना बंद करो तो बच्चों का. ठीक है. मेरे पास अभी भी 2-3 है जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, दे आर लाइक 12-13 years old. Yeah, for example, Kian also, he also does weightlifting. But he does not lift. He lift. Yeah, I've started training with about 3.5 years. Proper load में, right? हाँ, कम काफी, to be very frank. Proper load में, optimal load है. तो अगर एग्जाम्पल उसका वेट अभी एग्जाम्पल 40 kgs है अभी, तो 40 kgs तक उठा पाए, उससे ज्यादा नहीं. वो ट्रेन करना पड़ेगा उस चीज के लिए. वो डायरेक्टली नहीं उठाएगा. तो अगर डायरेक्टली उठाया तो शायद से पॉसिबिलिटी की इंजरी हो सके, ग्रोथ प्लेट इंजरीज होना बहुत सारे बच्चों को होता है. हाइट से कुछ रिलेशन है क्या? वेट एंड हाइट, देयर इज नो रिलेशन. देयर इज नो. अगर ये कहना है कि मेरा या फिर पूछने का मतलब है कि अगर कोई इफ डू मोर हेवी ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग इज द बेस्ट वर्ड. तो ओवरलोडिंग आपने ज्यादा कर लिया, जंप ज्यादा कर लिया, तो शायद से रुक सकता है.
रुक सकते तो आप क्या एज में सजेस्ट करेंगे ये सही एज है कि आप करो, या फिर आप ये कहेंगे कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन ऑल्सो, इन्फेंट ऑल्सो, कि आप 1 साल के हो गए आप करो, हाँ आप छोटे वजन से आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो सेफ है। तो आप बहुत सारे आप यूएस में जाओ, यूएस में 4 इयर्स से आपको स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे इंडिया में नहीं, 18 इयर्स के बाद भी नहीं है स्कूल में, तो ठीक है। हाँ वहाँ पे यूएस में स्टार्ट किया, Correct. बिकॉज दे इंकरेज मोर एंड मोर के फिटनेस में जाओ, ठीक है। वहाँ पे सेंट्रल एक्सरसाइज ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने पिकअप पकड़ लिया कि नहीं अभी आप जाओ करो, तो physical fitness- movements बनाओ। physical movement ज़्यादा करो। अभी आप जैसे आपने बोला कि लोग मोटे हो जाते हैं, लाइक मैं बता रहा हूँ मुस्तफ़ा, मेरा जो जिम है गोरेगांव का, वो एग्जैक्टली स्कूल के सामने है, और उनका स्कूल छुटते करीबन 2:30 बजे 3 बजे छुटता है, एंड वहाँ से जो बच्चे आते हैं उनके हाथ में वड़ा पाव मिलेगा आपको, या फिर वो जो थैली में मिलता है चिप्स मिलता है, चिप्स मिलता है। इट्स नॉट द सैड थिंग टू सी द चिप्स और वड़ा, बट इफ इट्स वंस इन वाइल, और ऑफ कोर्स शायद बच्चे भी भूखे रहेंगे जब भी स्कूल से निकलता है, एंड 99 मैं बोल रहा हूँ 99.9% ऑफ किड्स आर ओबीस, एंड एक आध बार एक मम्मी आ गई थी अपने बच्चों को लेके, एंड ही मस्ट बी इन हिज 8th स्टैंडर्ड, एंड शी इज लाइक इज डायबिटिक ऑल्सो। तो इट्स अ वेरी सीरियस सिनेरियो। मैं तो कहूँगा कि जैसे इन्होंने भी अभी बताया कि आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी इंड्यूस करो। हो, अगर जिम भी नहीं है तो जिम में तो डेफिनेटली करना अच्छी बात है, उससे एक्चुअली हाइट रुकती नहीं है। जैसे हमने बात की अभी ओवरलोडिंग, आपको ज़्यादा नहीं कराना है, एकदम हेवी नहीं कराना है, So there is a trainer for that, there is a physio for that. Yeah. ठीक है, इन trainer- अच्छा अलग कैटेगरी उस बात है क्या? है ना, अच्छा। फिजियोस के लिए है, there is a physio, pediatric physios called, पीडियाट्रिक फिजियो, बच्चों के लिए अलग से फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है। अगर नहीं, ट्रेनर्स भी है, ट्रेनर्स को पता है कि बच्चों को ज़्यादा लोडिंग नहीं करना है, ठीक है। ट्रेनर्स को उनको बोलोगे, ट्रेनर्स को असेस करना, ट्रेनर्स को भी आता है आजकल, दे आर एसएससी कोच ना, ठीक है, तो उनको आएगा कैसे करना है बच्चों के लिए, कैसे करना एनी स्पेसिफिक कंपनी यू कैन सजेस्ट, एनी यू नो एनी कंपनीज? है। एसएनसी कोच इज सर्टिफाइड As a strength and conditioning, SMG stands for, okay. सर्टिफाइड कोर्स, तो उसमें सब पढ़ाता है ना कि बच्चों के लिए कैसे करना है। यू कैन स्टार्ट द 4 एज से भी आप स्टार्ट हो, कोई इशू नहीं। 4 years से एक्चुअली अगर आप कियान और कियारा के बारे में बात करेंगे, सो आई स्टार्ट वेरी अर्ली। कियान तो 3.5 साल 4 साल तक हम करते थे, बट हमने ये नज़र में रखा हमेशा कि ओवरलोडिंग या फिर हेवी वेट से नहीं करते थे, वही 10-12 रेप्स, या फिर उन्होंने कभी बूट कैम्प कर लिया, पिलाटिस कर लिया। तो ग्रुप क्लास के अंदर एनीवेज बाय डिफॉल्ट वी डोंट गो इनटू अ वेट सिलेक्शन व्हिच इज टू हैवी टू लिफ्ट इट, तो वो उस तरीके में हम करते हैं। उस वक्त जैसे काफ़ी सारे जन एनी कुड बी एनी रीजन दे स्टार्ट फीलिंग पेन, एंड ऑफ कोर्स उसके एक सर्टन प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको पेन आ गया, आपको महसूस हो रहा है कि पेन हो रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली पेन, और पेन अगर शुरू हो गया तो आपको क्या, कैसे उसके और कैसे बढ़ना चाहिए? सो पेन इज अ अलार्म सिस्टम फॉर योर बॉडी, इट्स नॉट अ सिम्टम, ठीक है। अगर एग्जांपल इफ अ पेन, ठीक है, आपने बोला कि आज रुक जाता हूँ, कल जाते हैं, फिर परसों जाते हैं, तरसों जाते हैं, मतलब इट वर्सन योर सेम सिम्टम्स, इज वर्सन योर इंजरी, ठीक है, पॉसिबिलिटी। करेक्ट। इफ द पेन कम्स आफ्टर योर जिम एक्टिविटी, ठीक है, इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप डोम्स है या सोननेस है, राइट। तो अगर DOMS डोम्स डिले ऑनसेट मसल डिले ऑनसेट मसल सोरनेस, सो वो 1 या 2 days ही रहेगा, मैक्सिमम 3 days के बाद चला जाएगा। दैट्स नॉट मसल सोरनेस दैट यू Muscle टॉकिंग, soreness, व्हिच इज yeah. नॉट अ बिग थिंग, राइट? हाँ, बट हाँ, पीपल बच्चों नहीं पता होता लोगों के Correct. ये है क्या एक्चुअल में, करेक्ट। ठीक है, ये पेन है, सोननेस है, व्हाट इज एग्जैक्टली इज देयर। सोरनेस आई थिंक सोरनेस ठीक है, बट पेन नहीं होना चाहिए। हाँ, पेन नहीं होना चाहिए। नाउ पेन इज लाइक 1 month है, 2 months है, वो सेम शोल्डर में, एग्जाम्पल शोल्डर में पेन है, कंटिन्यूस पेन है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, कंटिन्यूस पेन है, फर्स्ट गो टू सी योर डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, या आप जिस भी ट्रस्ट करते हो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, ट्रस्ट हो उनके पास जाओ, जस्ट जहाँ पे आपको ट्रस्ट है उधर जाओ, उनको दिखाओ, डायग्नोस करो पहले। डायग्नोस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक एग्जांपल, आपको पता ही नहीं कि है क्या एक्चुअल में इधर, ठीक है, आप लिफ्ट करते जा रहे हो, पॉसिबिलिटी कि आप ज़्यादा और इंजर कर लो सेम स्ट्रक्चर को या दूसरे अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको इंजर नहीं करना है वो वहाँ पे, तो उसको रोक के फिर उसका टेक केयर करना शुरू करो, करेक्ट? सी योर डॉक्टर। I'll tell you one of the very good examples. So once I broke my tricep tendon, जो यहाँ पे अब शायद आपको मार्क दिख रहा है, ये tricep tendon. So I went to meet the doctor of course, and जब भी मैंने उनसे पूछा, मतलब अगर what if I don't do it now, अगर मैंने, तो उन्होंने बोला कि करीबन 80% तक वो खुल गया है, टूट गया है, अलग अलग हो गया। तो उन्होंने बोला कि देखो थोड़ा बहुत तुम कर ही लेंगे मूवमेंट, अगर तुमने अभी नहीं की वहाँ पे कुछ भी, या तुमने उसको सूचर करके उसको फिक्स नहीं किया तो वहाँ पे रह जाएगा, तो तुम्हें कभी भी उसकी स्ट्रेंथ या फिर शायद मूवमेंट्स भी कभी वापस ना आए। तो डेफिनेटली मैं तो करने वाला था, तो मैंने करके ले ले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फिक्स दैट स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, देन उसके बाद आप आगे बढ़ो। जो भी पेन के साथ में एक्सरसाइज करना
doesn't make any logic. वन मोर थिंग, इफ यू हैव अ पेन, ठीक है, पेन जैसा ऐसा से कि पेन इज योर अलार्म सिस्टम योर बॉडी, इट्स नॉट अ मेन सिम्टम्स ऑफ एनी अलार्म मतलब कुछ बता रहे होने वाला है. इट्स अलार्म सिस्टम ऑफ योर बॉडी. ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, एंड मैंने मूवमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ रेस्ट किया है, ठीक है, बाकी फिजियो डॉक्टर ने बोला कि रेस्ट करो ठीक हो जाएगा. रेस्ट से पेन ठीक नहीं होने वाला. करेक्ट. ठीक है, यू हैव टू डू सम मूवमेंट, सम ग्रेजुअल मूवमेंट, सम लो काइंड ऑफ मूवमेंट, लो इंटेंसिटी मूवमेंट, कि आपको वो स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट मूव करो, यू नो, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने के लिए, ब्रेन को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, ट्रस्ट दिलाने के लिए कि नहीं मैं मूव तो एटलीस्ट कर सकता हूँ. लोग फुल्ली अगर रेस्ट करने लगे तो वो पेन कभी ठीक नहीं होला और ज्यादा वर्स हो जाएगा. मूवमेंट्स नहीं है तो आप या ऑब्वियसली, ठीक है, मूवमेंट ही नहीं हुआ. एट्रोफी हो जाता है, मतलब would you recollect? एट्रोफी इज लाइक योर मसल इज लाइक गॉन, पूरा का मर गया, मतलब उसकी वॉल्यूम चले जाती है, ऑलमोस्ट मर जाते हैं. ऑलमोस्ट मर जाता है. ठीक है, मूवमेंट तो होगा लेकिन अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो देयर. करेक्ट. बॉडी इज लाइक वेरी लाइक गुड मशीन्स, ऊपर ने बहुत अच्छे से मशीन्स बनाए. ठीक है, अगर एक हाथ ऊपर, अगर यू हैव अ टेंडन टेयर आल्सो हियर, ठीक है, आप हाथ ऊपर उठा लेंगे, दूसरे मसल्स है वर्क करने के. करेक्ट. ठीक है, सिंजस मसल जैसे होता है ना, वो मसल काम कर लेगा, सेम काम कर लेगा, मूवमेंट दे देगा. मूवमेंट सेम मूवमेंट देगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ होगा, वो फिजियो को पता है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ हो रहा है. मूवमेंट असेसमेंट करके वो जा सकते हो उस चीज़ के लिए कि हाँ ये इंजरी है, फिक्स इट. तो वो इफ इन केस लाइक जो व्यू कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं वीडियो को, उनको अगर बढ़िया आपको टिप्स देना है या फिर ये चीज़ें 3 चीज़ें आप नज़र में रखो, वो क्या 3 चीज़ रहेगा? एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस, एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस, आई वुड से हेल्थ. फिटनेस एक काफ़ी अलग सी पैरामीटर हो जाती है मेरे से हेल्थ के लिए. आप कहेंगे कि यार 3 चीज़ तुम करो आपको बढ़िया जॉइंट हेल्थ मिल जाएगा, ऐसे क्या चीज़ है? 3 थिंग्स आई वुड से कि फर्स्ट इज योर हाइड्रेशन. हाइड्रेशन. क्या? मुंबई में क्लाइमेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, कभी गर्मी कभी. और वैसे भी कोई पानी पीता भी नहीं है, मतलब हाँ, कॉर्पोरेट में कोई पीता नहीं, वो एसी रहेगा तो कोई पानी नहीं पीने वाला है, थकती नहीं लगता, कोई पानी पिएगा भी. फर्स्ट इज योर हाइड्रेशन लेवल. कितना होना चाहिए पानी की? 3 to 4 लीटर. 3 to 4 लीटर मिनिमम. और आपको स्किन भी एकदम ग्लो वाला स्किन चाहिए तो कितना होना चाहिए? 3 to 4 लीटर. ठीक है, बढ़िया. ठीक है, नॉर्मली ऐसा रिसर्च है कि आपका बॉडी खुद मांगता है पानी. लाइक थर्स्टी, यू फील थर्स्टी तो यू कैन ड्रिंक मोर. ठीक है, बट should we wait for that thirstiness to come? No. तो ये भी एक बड़ी सबक है. बिकॉज मॉइस्चर है ना. हाँ, मॉइस्चर है, एसी है, तो थर्स्टीनेस लगेगी नहीं. thirsty मतलब आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेशन में चले गए हैं, इसके लिए पानी मांग रहे, तो आपको thirsty होने के लिए वेट नहीं करना, बट उससे पहले आप पानी पी लो. और जैसे इन्होंने बताया कि 3 से 4 लीटर पानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुड हेल्थ आपको नजर में रखना है. What could be second point and third point? Second is your stress. ठीक है, the more you stress, the more you have a pain. ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंजरीज नहीं होते हैं, पेन नहीं होता है, मतलब कोई यहाँ पे कुछ है ही नहीं. बहुत सारे लोग ऐसा होता है, ऐसा फिजियोस भी होता है कि इट्स इन योर माइंड, नथिंग इज देयर इन योर शोल्डर. ये मैंने सुना है. हाँ. मेरे और नहीं, बट किसी और क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो फिजियो ने मुझे ऐसे बताया कि तुम्हारे दिमाग में फिजिकली कुछ नहीं. पर ऐसा होता है? नहीं, if you have pain, there is something in your there that has to be fixed. Maybe 80% of your mind acts, but 20% कुछ तो है आपको वो पकड़ना है. ठीक है. सेकंड है कि स्ट्रेस मत लो. स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आपको. करेक्ट. स्ट्रेस मैनेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मुंबई जैसे सिटी में. जैसे आपको मुंबई में रहना है तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा. इफ यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू गोरेगांव आल्सो, इतने सारे प्रॉब्लम आपको आएंगे कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया. हाँ, मैं बता रहा हूँ, आजकल मैं आई एम ड्राइविंग न्यू कार एंड तो अगर आप दुबई में गाड़ी चलाते हो तो आपको इतनी सारी डिस्टेंस होती है गाड़ी के बीच में, ओके. और आपको पता है कि अगर आपको बाई चांस ये लेन छोड़ के आपको दूसरी लेन जाना है, यू कैन टेक इजीली कट एंड गो. बट यहाँ पे सिग्नल में गाड़ी रुकती है और सिग्नल काफी सारे टाइम बंद हो जाते हैं, फिर नोबडी केयर्स अबाउट द सिग्नल, राइट. और जो आजकल जो अपना ये ब्लिंकिट वाले की जो वो बाइक होती है उसके अंदर नंबर नहीं होती है, इलेक्ट्रिक बाइक होती है, पता नहीं बड़ी कॉल है, वो ऐसे कट मारते हैं, मतलब सामने से कट मार के निकल जाते हैं और आपको ना पता है. और एक गाड़ी में अलार्म सिस्टम लगा रहते हैं जो बजते रहता है, ये गाड़ी वो जाने के बाद बजता है कि चला गया अभी, मतलब तो दैट्स स्ट्रेस एक्चुअली. और आप, मैं कहूँगा आप लाइक आई जनरली ट्रैवल फ्रॉम अंधेरी टू गोरेगांव जहाँ पे मैं रहता हूँ, इतना वो वहाँ से वो डिस्टेंस. टेल वन थिंग इन दिस, देयर इज अ रिसर्च कॉल, इफ यू वांटेड टू बी स्ट्रेस फ्री इन मुंबई, ठीक है, तो आप एक ड्राइवर आपके पास रहना चाहिए हर एक कार के अंदर. अच्छा. अगर आपके कार के अंदर ड्राइवर है तो आपका वो स्ट्रेस हट जाता है. नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ड्राइवर होना दूसरी स्ट्रेस है आपको. मैं और ऐसे होता था, मेरे पास 3 गाड़ी है, तीनों में से जो गाड़ी मैं चलाता हूँ उसमें कम स्क्रैचेस हैं. जो ड्राइवर के पास गाड़ी, उसमें गाड़ी बची नहीं, स्क्रैच बचा हुआ, मतलब यू कैन ओनली सी स्क्रैचेस ऑल ओवर द प्लेस. दैट्स द फन पार्ट.
What would be the second? You said hydration is something important. Second is the stress. And Stress third, management. stress management. Third is your sleep recovery. What would you say? I think it's one of the beautiful. मैंने एक बड़ी सबक सीखी है मेरी ज़िंदगी में. मैंने हमेशा ये सोचा था कि यार मैं काफ़ी काम करूँगा, कम सोऊंगा, और मैं हमेशा सोशल मीडिया पे बोलता हूँ मैं 3-4 घंटे सोता हूँ बड़ा कूल बन के. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट मेरा जो परफॉर्मेंस है वो कम होता है. ऑफ कोर्स एज के साथ कम होता ही है, बट काफ़ी बड़ा लेवल में आई कुड सी दैट इज गोइंग डाउन. But your recovery is very most important thing. I will say कि example आप सोते क्यों? आई थिंक क्यों? एक सिस्टम है ये- जहाँ पे आप एक रिफ्रेश दिमाग- करते हो, रिजुविनेट करते हो अपने आप को. ठीक है. If I say कि आपका माइंड शट डाउन होता है फॉर अराउंड 6 to 7 आवर्स के लिए. ठीक है, आपका माइंड शट डाउन हुआ, नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में उठेंगे फिर से एक स्विच ऑन होगा वो. ठीक है, तो देयर इज अ कॉल इज इन्फ्लेमेशन. ठीक है, वेन एवर यू स्लीप यू टू स्लीप नो देयर इज अ मेनी हार्मोन्स आर देयर जो इन्फ्लेमेशन लेवल्स बढ़ाते हैं. Okay, ठीक है, रात okay. में. तो एग्जांपल आपने आज फुल डे काम किया, अराउंड 8 to 10 आवर्स आपने काम किया. अब आप काम किया मतलब कुछ तो भी माइक्रो टेस्ट हो गए बॉडी में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्कआउट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल वर्क्स. ये दिमाग से आप काम करते हो, ऑफिस में काम करते कैसे हो. मेंटल हो गया, फिजिकल हो, कैसे भी. ठीक है, तो उसको हील करने के लिए देयर इज अ कॉल इज इन्फ्लेमेशन. ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस बढ़ता है रात के टाइम पे. जितना आप सोएंगे लाइक फ्रॉम मॉर्निंग आप से 8 to 8 आवर्स आपको सोना होता है, 7 to 8 आवर्स. अगर आप जितना अच्छे से सोएंगे, रिकवरी जितना प्रॉपर होगा, इन्फ्लेमेशन लेवल उतना अच्छे से राइज अप होकर राइज डाउन होगा. मॉर्निंग में यू कैन वेक फ्रेश अप. ठीक है, आप जितना फ्रेश अप उठेंगे, ठीक है, आपका दिन उतना अच्छा जाएगा. जितना बेहतर जाता है. मैंने ये सच में सीखा है मुस्तफ़ा, और आज की तारीख में मैं अलार्म लगाता हूँ कम से कम 8 घंटा तो मुझसे होता नहीं है सोने के लिए, बट 7 घंटा में मेक इट अंदर नो मैटर व्हाट आई एम ऑन द बेड. और मुझे साउंड स्लीप भी नहीं मिल रहा, मैं एम टीचिंग माई बॉडी टू अडैप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ 7 hours ऑफ स्लीप, एंड इट डज वंडर्स. जब भी अगर आप 7 hours सोते हो, एक तो आपकी दिमाग बढ़िया काम करता है, आप फ्रेश माइंड से काम करते इफ यू हो. डू वर्कआउट, अगर आपने आज वर्कआउट कर लिया, ठीक है, नॉर्मली लोग बोलते हैं वर्कआउट के बाद आप जाके रिकवरी ले लो, मसाज ले लिया आपने, आइस बात ले लिया. जस्ट गो, आज रात में आप सो, आप नेक्स्ट डे आपका रिकवरी हो जाएगा ऑटोमेटिक. करेक्ट. ठीक है, तो आप जाके आपको एक्सपेंसिव चीज में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, जो सोना है बस आप सोना है, ध्यान रखना है 7 आपको. to 8 आवर्स आप सो बस. करेक्ट. एंड आई थिंक आपने जो कही ये चीज़, अभी जो 3 चीज़, एक काफ़ी अहम है, काफ़ी वैल्यूबल चीज़. अगर जिसने भी, अगर ये पूरा पॉडकास्ट में से इतना भी समझ में आ गया आपको कि 3 चीज़ को मैनेज करना है, ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल चेंज फॉर गुड. एंड दोज 3 थिंग्स आर अबाउट, द फर्स्ट वन इज अबाउट हाइड्रेशन, सेकेंड वन इज अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज द स्लीप. कम से कम मुस्तफ़ा कह रहे कि कम से कम आप 7 से 8 घंटा सो. एंड आई थिंक इवन लीविंग द मोबाइल the early hours of the day will keep your mind calm. That's what we've been listening and learning. One last question. Mustafa has a lot of time constraint. एक काफ़ी busy physio है, काफ़ी. फिर भी I'm really thanking you that you took out time, came all the way here to do this podcast. And I genuinely want to help people because these are the few sections that has left alone. मतलब वार्म अप की सेक्शन है जो आपने काफ़ी सारी चीज़ें कहा आज, वो सब sections काफ़ी हद तक छुटे हुए थे. So we're going to pick that up and I'm sure that with the time, this channel is going to be really helpful for people. And Mustafa, I want to ask you one more thing, which is very beautiful. We spoke about before the podcast. ये आजकल काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस में देखता हूँ कि बड़े स्टाइल में वो लोग एक कलर वाला सामान, एक बैंड लगा देते हैं, एंड दे काफ़ी सारे लेग में लगाते हैं, बिकॉज एंड दे वेयर द शॉर्ट्स, दे लुक क्वाइट सेक्सी विद दैट थिंग. एंड यहाँ पे लगा देते हैं, या फिर ये इधर स्कैपुला पे लगा देते हैं, थोड़ा बहुत रियर डेल्ट्स के यहाँ पे. What is the correlation of pain and these bands that you can see? And of course we have insertion and origin of the muscle. So anything to do with it? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? You're talking about the kinesotaping, right? Kinesotaping. It's called as kinesotaping. Okay. Kinesotaping. ठीक है. So kinesotaping is a technique where you can start with the muscles from origin to insertion or insertion to origin. Whatever you do, मतलब आपको उसको स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस में लेके आना है या फ्री करना है, वैसा. ठीक है, इट्स अ टेक्निक बेसिकली. Okay. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च कि देयर इज नो कोरिलेशन फ्रॉम देयर इज अ नो कोरिलेशन फ्रॉम योर लाइक पेन से या आपके स्किन से या मसल से कुछ मैटर नहीं करेगा. मतलब टेप लगाने के बाद आपको ऐसा नहीं कि मसल है वो हील हो जाएगा, स्ट्रेन कुछ मतलब भी नहीं उससे.
थोड़ा बहुत तो थोड़ा कम तो होगा वो, हम्म, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस को आया कि नहीं कम है, ही कैन मूव टू दैट एरिया कि हाँ ये भी 100 में से मेरे को 10 तक आ कम गया हो रहा तो है। 90% मैं मूव कर सकता हूँ अभी। वो तो एक फेथ बनाती है, एक कॉन्फिडेंस बनाती है, कॉन्फिडेंट बट है, नथिंग टू डू विद डायरेक्ट। डायरेक्ट कोरिलेशन विद द मसल एंड द काइनेसिस ट्रेनिंग। क्या बात है, एंड इट लुक्स सो कूल एंड एक्चुअली आई थिंक जैसे इन्होंने बताया कि एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक जब भी मुझे फीवर, मैं आपको ये भी बता रहा था, जब भी मुझे फीवर होता है मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, एंड तो शायद उनको भी समझ में आ गया कि मेरे दिमाग में ऐसा है करके एक इंजेक्शन मारता है, एंड एज सून एज आई गेट आउट ऑफ द क्लिनिक आई एम लाइक यस आई एम सुपरमैन नाउ। तो आपका दिमाग का इतना सारा बड़ा असर है towards any kind of thought process or towards any kind of behavior that you do. Beautiful Mustafa, it's such a great pleasure to have you around, and then in fact मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखा, being a trainer also इतना सारा स्कोप था कि सीखने के लिए इनसे, and जब भी इनसे मिलता हूँ we always get to speak to about a couple of minutes, and always those time turned out to be something very really valuable and educative for me as well. So I'm sure that this video would be something really really helpful for all the viewers. So Mustafa, you have a channel on Instagram and you're not yet on the YouTube at this point of time. Yes. But of course you can visit him on the Instagram, and he's an amazing guy. That's what I want to say that. And I believe, I'm a firm believer of you should always work with the amazing people, because then you become another amazing person. Okay, wonderful. Thank you, Mustafa. Nice to have you, brother. Nice to have you. Thank you.